Vaishnave Puyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So I would like to first of all start by thanking His Grace Kamalochan Prabhu. This is the 5th state in 2 weeks which Kamalochan Prabhu has invited me to. तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, मुझे बोल रहे हैं तो उनको निमंत्रण दिया था अनेकों स्थानों में, किसी कारणवश हो नहीं पाया। तभी ये 5वां राष्ट्र है भारत में जो मैं प्रवेश कर रहा हूँ। And wherever we have traveled to, the one consistent feature is that we have been surrounded by wonderful devotees. हम जहाँ गए पिछले हफ्ते 10 दिन में, हम कहीं भी जाएंगे हर जगह अच्छे सुंदर भक्तों के द्वारा हम आवृत हुए हैं, उनके साथ परिचय हुआ। Because there is a principle that like attracts like. So because Kamalochan Prabhu is such a wonderful devotee, naturally many other wonderful devotees will come to that place, wherever Kamalochan Prabhu is. इसका अनुवाद करना मुश्किल है। तो ऐसा एक सिद्धांत है कि एक जो आप जिसको आप पसंद करते हो उसी प्रकार के पसंद वाले लोग जो हैं आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे कहावत है कि एक ही रंग के पक्षी जो हैं साथ में मिलते हैं, तो जहाँ भक्त होते हैं उसी प्रकार के सुंदर भक्त जो है उनके साथ जुड़ते हैं। So while I feel very unqualified to sit here in front of Kamalochan Prabhu and speak to you all, I understand that along with Shravanam, there is also Kirtanam. So we purify ourselves by hearing, but we also purify ourselves by speaking. So I am not doing this to teach, rather I am doing it to purify myself. तो ऐसे भक्तों के सामने इस प्रकार मेरे पास कोई योग्यता नहीं है वर्णन करने का, कीर्तन करने का, प्रवचन देने की, लेकिन फिर भी हमारे भक्ति के सिद्धांत में श्रवण है और कीर्तन भी है। हम कीर्तन करते हैं अपने आप को पवित्र होने के लिए कि मैं आज आपके सामने कुछ प्रस्तुत करूंगा, ये अपने पवित्रता के लिए कर रहा हूँ। आप सब लोग आगे बैठ जाइए, सामने करके खड़े मत रहे, कोई खड़ा नहीं रहेगा। Nobody will be standing. So we know our founder Acharya Srila Prabhupada, he achieved so much in such a small period of time. In 10 years, he traveled the world 12 times. श्री प्रभुपाद जी बहुत कम समय में बहुत सारे कार्य किए। केवल 10 साल में उन्होंने पूरा विश्व जो है वो 12 बार भ्रमण किए। He established 108 temples. उन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण किया श्री प्रभुपाद जी ने। He made 5,000 disciples all over the world. उन्होंने 5,000 शिष्यों को उन्होंने बनाया। He met with heads of state and influential people the world over. तो उन्होंने अनेकों प्रकार के राष्ट्र के जो अधिपति है उनसे उनका मुलाकात हुआ और उन्होंने अनेकों लोगों से उनसे मुलाकात हुआ। And most importantly of all, his special gift was the chanting of this special mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो श्री प्रभुपाद जी इस विश्व को उन्होंने अनेकों अनेकों प्रकार के उपहार दिए। उन अनेक उपहारों में सर्वश्रेष्ठ उपहार उन्होंने दिया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, अभी जो हमने जप किया। Because in this age of Kali, it is understood that Haryanama, Haryanama, Haryanameva Kevalam, Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyata. तो इस कलयुग में खास करके ये समझा जाता है कि एकमात्र प्रयोजन है, एकमात्र हमारा सिद्धि का मंत्र है, वो है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। Kalim Sabha Jayanti Arya Gunaghna Sarabhagina Yatra Sankirtane Neva Sarvasvarto Bilabhyate. So this verse means that those who are intelligent understand that this age of Kali Yuga has one special quality, and that is by the chanting of this Hare Krishna mantra, the mantra that Srila Prabhupada has given us, one can achieve all perfection, all spiritual perfection. तो बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि इस कलयुग में केवल एकमात्र सिद्धि का प्रणाली है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र को जप करता है तो हर प्रकार का जो सिद्धि है उसको प्राप्त कर सकता है मनुष्य जन्म का। And we should not take this chanting as a very light thing. This is something very casual. Actually, a great saint, Narottam Das Thakur, he gave this instruction that Golokera Prema Dhana Harinam Sankirtana. This Harinam is directly coming from the Lord's abode, Goloka Vrindavan. तो ये जो हरिनाम संकीर्तन है उसको बहुत सस्ते से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हरिनाम संकीर्तन जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि साक्षात भगवान की धाम से इधर प्रकट हुआ है। So it seems that Srila Prabhupada has given us everything that we require. What could be greater than this? And yet, at the end of Srila Prabhupada's pastimes here, he said he regretted that 50% of my work is unfinished. तो ये हमारे प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ देके हमको दिया है। हमारे पास ऐसा मन में आ सकता है प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन प्रभुपाद जी उनकी अंत समय में, अंत काल में, तो जब अपना शरीर त्याग कर रहे थे उस समय वो पछता रहे थे, मैं केवल 50% कर पाया और 50% जो है वो करना बाकी रहा है। And that 50% of work that Srila Prabhupada said is unfinished is establishing Varnashram Dharma. ये कौन सा है 50% जो प्रभुपाद जी चाहते थे कि मैं कर नहीं पाया और हमारे लिए करने के लिए दिया है, वो क्या है? वो है वर्णाश्रम। So this Varnashram is Srila Prabhupada's unfinished business. तो एक तरीके से बताया जाए ये वर्णाश्रम जो है श्रील प्रभुपाद जी का अधूरा रहा गया एक कार्य है। And actually this unfinished business is now the mission and Srila Prabhupada's special mercy on all of Srila Prabhupada's followers. ये प्रभुपाद जी के द्वारा अधूरा छोड़ा गया जो कार्य है, ये प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है हमारे ऊपर, खास करके हमको ये सेवा दिया उन्होंने ये कार्य करने के लिए। And if we are to undertake this mission, we must first of all understand what is Varnashram. अगर हमको ये जो कार्य प्रभुपाद जी का अधूरा रहा गया कार्य जो हमारे ऊपर कृपा करके दिया है प्रभुपाद जी ने, इसको अगर कार्य करना है, सिद्ध करना है, सफल करना है, सबसे पहला ये समझना होगा कि वर्णाश्रम है क्या। Why is it important is the second consideration. तो दूसरा बात ये है कि ये वर्णाश्रम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। And third of all, what can we do practically to make Varnashram or to revive Varnashram within India? तीसरी बात ये है कि भारत में और अन्य जगह भी ये वर्णाश्रम धर्म का पुनरुद्धार या पुनर्जीवन करने के लिए क्या करना होगा हमको। So let's start with that first point. What is Varnashram? तो सबसे पहला हम ये प्रारंभ करते हैं कि वर्णाश्रम है क्या। So Sri Krishna says in the Bhagavad Gita, Chaturvarnyam maya shrishtam guna karma vibhagasah. And what this means is that according to the guna,
according to the quality that somebody has, or the qualities of the material nature, I have established society into 4 divisions. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि मैंने ये 4 वर्णों का जो विभाग मैंने सृष्टि किया है गुणों के आधार पर. Now, we mustn't become confused that this means something oppressive or something man-made to control society. तो हमको ये समझना नहीं चाहिए कि ये जो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना जो है किसी को दबा के रखने के लिए, किसी को शोषण करने के लिए नहीं किया गया है. ये स्वाभाविक एक भगवान के द्वारा सृष्टि किया गया व्यवस्था है. Different people have different skills. Some people can carve this beautiful mandir. They can take one chisel and one hammer and they can make something beautiful. You see, for Jagannath, we see this beautiful wooden mandir. They have that skill. जैसे हर व्यक्ति के पास हर प्रकार की क्षमता कला होती है. जैसे देखिए इधर सुंदर जगन्नाथ जी का जो ऑल्टर बना हुआ है, वेदी बना हुआ है, एक खैनी लेके एक सुंदर सा कार्विंग बना सकता है. इसके पास किसी का इस प्रकार है. Some people have the skill that they can read the full Bhagavad Puran and they can memorize every single shlok, all 18,000 shloks. किसी के पास ऐसी कला और क्षमता है कि भागवत का 18,000 श्लोकों को याद कर सकता है. Some people can go to Kashmir and they can face death in the face and they will not flinch. किसी के पास ऐसी क्षमता है कि वो कश्मीर जा सकता है और युद्ध करके मृत्यु का भी सामना कर सकता है, फिर भी डरे बिना. And some people, especially here in Gujarat, they can go outside and they can make money come out of the air wherever they go. तो जैसे गुजरात में लोगों का ऐसा क्षमता है कि वो कहीं भी जा सकते हैं कि हवा में भी वो पैसा निकाल सकते हैं. So naturally we see in society people have different tendencies. तो स्वाभाविक तरीके से देखा गया समाज में अलग-अलग लोगों का अलग प्रकार की प्रवृत्तियां हैं. So we can understand that society falls into 4 main varnas. Do we know what these 4 varnas are? हम जानते हैं कि ये पूरा समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित किया गया है. कि आप में से कितने लोगों को मालूम है 4 वर्ण क्या है, कौन कह सकता है? ब्राह्मण और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. Very good, very good. Shabash. So these 4 varnas are like the 4 parts of the body. ये 4 वर्ण जो हैं वो शरीर के 4 अंग के समान हैं. We need all 4 varnas in order to have a complete, strong and healthy body. हमको 4 वर्णों की आवश्यकता है क्योंकि ये 4 वर्ण शरीर के 4 अंगों के समान होने के नाते 4 वर्ण होगा तो हमारा शरीर पूर्ण होगा. People think that Shudra means something bad and undesirable. लोग सोचते हैं कि शूद्र का अर्थ है कि अरे बुरा है या नीच है या हम अवांछनीय है, ऐसा सोचते हैं. But in Bhagavad Gita, who was the one that was narrating Sri Krishna's instructions? तो भगवद गीता में आप जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण के जो भी उपदेश है वो धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा था? Sanjay had the fortune which even the king of the Kurus, Dhritarashtra, did not have. He could see Sri Krishna Bhagavan speaking and he could relate that. So all people for all future would understand who Sanjay was. तो संजय के पास ऐसा भाग्य था जो कुरुवंश का जो राजा धृतराष्ट्र के पास भी नहीं था. साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पा रहा था और उनके द्वारा बताए गए जो बातें हैं, उनका प्रवचन है, धृतराष्ट्र को सुना रहा था. And the Shudras, they are like the legs of the body. They give the strength, they give the power, they allow society to move forward. तो ये शूद्र जो हैं वो समाज के पैर होते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये एक उनके द्वारा ही समाज आगे बढ़ सकता है. The Kshatriyas are like the arms. The arms give strength, they protect. क्षत्रिय जो है वो बाहुओं के समान है, वो हमको संरक्षण प्रदान करते हैं. The Brahmanas are like the head.
They give direction, they can think, they can see the future and make a plan for the betterment of तो society. ब्राह्मण जो है वो मस्तिष्क या ब्रेन के समान होते हैं जो आगे की भविष्य को देख के उनका मार्गदर्शन देने का कार्य ब्राह्मणों के द्वारा होता है. And the Vaishya is like the torso or the stomach. Food goes in and then it is distributed throughout the body. जैसे वैश्य जो है हमारे पेट के समान होते हैं क्योंकि जैसे आहार ग्रहण करने के द्वारा पेट के अंदर जाके वो पेट से आहार जो है उसका जो रस है पूरा शरीर में व्याप्त होता है उसी प्रकार वैश्य का समाज प्रति इस प्रकार का सेवा होता है. So often you will see the richer the man, the bigger his stomach. हम ऐसा देखा गया है कि जितना ज्यादा अमीर है उसका उतना बड़ा पेट होता है. But we can't say that any part of the body we don't like. हम ये नहीं कह सकते हैं कि शरीर का कोई भी अंग जो है ये मुझे पसंद नहीं है. Because to dislike one part of the body is to punish the entirety of the body. अगर आप कोई भी शरीर का एक अंग को अगर पसंद नहीं करोगे तो आप शरीर को पूरा शरीर को सजा दे रहे हो. There is one ancient story that the rest of the body became very envious with the stomach. तो एक ऐसा कहानी है कहावत है या कहानी है जिसमें शरीर के सारे अन्य अंग जो हैं वो पेट के प्रति उनका ईर्ष्यालु हो गए हैं. The hand said, "We will no longer feed it." तो हाथ कहने लगे हम पेट को हम खिलाएंगे नहीं. The leg said, "We will no longer search out food so he can eat." तो पैर कहने लगा कि हम आहार को ढूंढने के लिए हम जाएंगे नहीं. The mouth said, "We will not receive food so it cannot go to the stomach." ये मुंह कहने लगा कि हम आहार ग्रहण नहीं करेंगे ताकि जिसकी वजह से हमारे पेट में आहार नहीं जाएगा. And in this way the rest of the body thought, we can prevent the stomach from enjoying everything. This way we will get our fair share. तो सारे इतने शरीर के अंग है वो सोचने लगे इस प्रकार में हम ये जो पेट है उसको तड़पाएंगे और हम खुश रहेंगे. But then what happened? तो क्या हुआ? The head became dizzy after days without food. तो ये सर जो है वो भ्रमित होने लगा, भ्रमण होने लगा. The arms and legs became weak. तो हाथ और पैर जो है वो बहुत कमजोर होने लगे. And ultimately they realized that only when the body works cooperatively do we have the desired outcome. तो तब बाकी सबसे जब तक हम एक दूसरे के साथ सहयोग करके सेवा नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक पूरा शरीर चलेगा नहीं. So this is a law of nature. ये जो है प्रकृति का नियम है. I'll ask one question. If I take water and I boil it to 100 degrees, what happens to the water? मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, अगर आप जल लिए और उसको 100 डिग्री टेम्परेचर तक उसको उबालना प्रारंभ किए तो क्या होता है? Steam. Very good, steam. The liquid becomes a gas. ये जो जल रूपी जो पानी है, पानी वो द्रव्य रूप में है, वो जो है भाप बन जाता है, गैस बन जाता है. If I am in Vapi, if I am in Mumbai, if I am in Delhi, if I am in Bangalore, if I am in Chennai, London, New York, does this fact change? तो जैसे मैं वापी में हूँ या मुंबई में हूँ, चेन्नई में हूँ, लंदन में हूँ, कहीं भी हूँ, क्या ये जो सिद्धांत है कि आप जल को अगर आगे से उबालना प्रारंभ करो भाप बनता है, क्या ये तत्व, ये जो तथ्य है वो परिवर्तन होता है क्या? नहीं. This is a universal law. ये जो है पूरा वैश्विक एक नियम है. In the same way that society has different types of people with different skills is a universal law. तो ये जो समाज में हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की क्षमताएं जो हैं वो होना वो वैश्विक तथ्य है. Just like every single one of us have 2 legs, 2 arms, 1 torso, 1 head, so society at large is also developed in such a way that it has 2 legs, 2 arms, a torso and a head.
जैसे हर एक व्यक्ति हम जो बैठे हैं, हमारे पास दो पैर है, दो हाथ है, एक पेट है, एक मुंह है, उसी प्रकार पूरा जो समाज का मूर्तिमान स्वरूप में भी दो पैर है, दो हाथ है, पेट है और एक मुख है. This is not something to be feared. This is something that should be embraced and used for the betterment of society. तो इसको हमको तिरस्कार नहीं करना चाहिए इस वर्णाश्रम सिद्धांत को, बल्कि उसको हमको आलिंगन करना चाहिए ताकि ये समाज जो है अच्छी तरीके से आगे बढ़े. In the Manu Samhita, anyway, we can leave that point. We can understand that. So why is this important? तभी दूसरा बात है कि पहला हमने चर्चा किया कि वर्णाश्रम है क्या, अभी चर्चा करेंगे कि ये वर्णाश्रम की महत्व क्या है, इनकी क्या आवश्यकता है. So many of you who have come to this temple, the first thing you will hear is that you are not this body, you are the soul. आप पहली बार जिस मंदिर में जो आए होंगे, तो पहली भी आए होंगे, सबसे पहली बात आपने सुना होगा कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है. And Chaitanya Mahaprabhu, who we can see here, Gaur Nitai, Chaitanya Mahaprabhu, he once gave an instruction. Naham vipro nachara nara patir napi vesho na shudro naham varni na graha patir no vanashtor yativa kintu prodyan nikhila paramananda purnamritabde gopi bhartor padakamalor das das anudas. So what this means is, I am not a Brahmana, I am not a Kshatriya, I am not a Vaishya, I am not a Shudra, nor am I a brahmachari, nor am I a householder, nor am I a vanaprastha, nor am I sannyasi. तो चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक में इस बात को कहा कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, मैं ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ. But this can be confusing. I've just sat here and said that society is like a human body. And then we have God himself saying, I am none of these things. तो अभी ये बात सुन के आप चुका जाएंगे कि अरे अभी तो आपने कहा कि पूरा समाज जो है ये चार वर्णों में विभाजित है, अभी इधर स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं इन चीजों में मैं कुछ भी नहीं हूँ. Because what the Lord is saying is that the soul is beyond all of these things. तो इधर भगवान क्या कहना चाहते हैं कि जो आत्मा जो है ये जो वर्ण आश्रम से परे है. But so long as we are in this world, we have to organize society in a proper way that we can realize the soul. तो जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, जगत में हैं, हमको इस समाज की व्यवस्था को ऐसे बना के रखना होगा ताकि हम सब ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं. Not that one day we just decide, okay, that's it, I've given up the world. तो ऐसा नहीं कि एक दिन हमने निर्णय लिया, बस मैंने संसार को त्याग कर दिया. Does anyone think it is possible to just give up the world like this? तो आप में से ऐसा कितने लोग मानते हैं कि बस एक चुटकी में संसार छूट जाए? कितने लोग मानते हैं? No, okay. Who here likes paneer? कितने लोग इस पनीर को पसंद करते हैं? पनीर कौन कौन पसंद करता है? Who here likes kulfi? कितने लोग कुल्फी पसंद करते हैं? Who here likes wearing clothes? कौन कौन है जो वस्त्र पहनना चाहता है? Who here likes living in a house? कितने लोग चाहते हैं कि घर में रहो? Who here likes having a scooty or a car? कितने लोग हैं जो स्कूटर या कार प्राप्त करना चाहते हैं? Who here likes having a microphone? कितने लोग चाहते हैं तो माइक्रोफोन प्राप्त हो आपको? As long as, who here likes their mobile phone? Everybody likes it. कितने लोग मोबाइल फोन चाहिए बोले? So as long as you have these things, we are involved in this world. जब तक आपके पास इन सब चीजें हैं, स्कूटर है, मोबाइल है, जो भी बातें कहा, तब तक हम इस संसार में उड़े हुए हैं. I had one acquaintance and he heard this shloka from the Puranas that a sadhu who wears only a kopin is to be considered fully dressed. तो मैं एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, उन्होंने पुराणों में एक श्लोक पढ़ा जिसके अंदर कहा गया है एक साधु जो है जो कोपिन धारण किया है, ये समझना चाहिए कि वो पूर्ण तरीके से वस्त्र धारण किया है. So at that time he was very Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai. At that time he was very keen to become a sadhu
तो उनको बहुत आग्रह था कि मैं साधु बनूं। So he decided, I will wear sadhu vesh. तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं साधु वेश धारण करूंगा। And he decided, yes, I will one day go to Vrindavan and I will wear only a kopin. तो उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन जाऊंगा और केवल कौपीन धारण करूंगा। And that person suffered so much humiliation just in one day. He tried to go into the temple and they said, this is not appropriate. तो बेचारा वो कौपीन पहन के एक मंदिर में गया, हर व्यक्ति उसको इतना बदनाम करना शुरू किया that forget dhoti, he will only wear jeans and a shirt now from today onwards. तो कौपीन की बात तो छोड़ो, आज से वो उनका अपमान हुआ, वो जीन्स टी शर्ट ही पहनेगा। So we can't artificially just think, now I'm on the spiritual platform. तो हम केवल कृत्रिम रूप में ऐसे मान के बैठ नहीं सकते कि बस मैं आज का स्पिरिट या पूरा आध्यात्मिक हो गया हूँ। We should aspire for the topmost spiritual platform. हमको आग्रह होना चाहिए, हमको सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने को लक्ष्य रखना चाहिए, लक्ष्य बना के रखना चाहिए। But there is a process that we can progressively get there. लेकिन हमारे पास एक विधि होना चाहिए जिसके द्वारा धीरे-धीरे से उसको प्राप्त कर सके। And that process starts with understanding what our nature is in this world. तो वो ये जो विधि प्रारंभ होता है, ये समझने के द्वारा कि मेरा स्वभाव क्या है। सदृशम चेष्टते स्वास्य प्रकृतिर्ज्ञानवन्नपि प्रकृतिम यन्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति. So this means that even a man of knowledge who is very learned, even in the spiritual scriptures, he has to follow the modes, the nature that he has acquired. He cannot artificially repress this. तो ये भगवद गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं कि भले ही कितने बुद्धिमान भी क्यों ना हो और विद्वान भी क्यों ना हो, शास्त्रज्ञ भी क्यों ना हो, उनको भी ये प्रकृति के जो गुणों and understand one's own occupation, even though he may not be perfect, then to accept another's occupation and perform that perfectly. तो इस श्लोक में कहा गया है कि हमारा जो स्वधर्म है उसको वो भले ही बराबर नहीं कर पा रहा है, वो श्रेय है, वो बेहतर है, बल्कि हम दूसरों के धर्म को अपना के भले उस धर्म को अच्छे से कर पाए, लेकिन स्वधर्म को करना ये श्रेय माना गया है। In India today, there are only 2 varnas left. भारत में अभी क्या हो गया कि 2 प्रकार का वर्ण बचा हुआ है। Number 1 is IT engineer. पहला है कि IT इंजीनियरिंग वर्ण बचा है। And the second is aspiring cricketer. तो दूसरा क्या है, मैं क्रिकेटर बनूं, यही 2 ही वर्ण बचा है। And maybe a third is Bollywood. Maybe a third is also Bollywood. तीसरा वर्ण अगर बचा है तो मैं बॉलीवुड में जाऊंगा। But people do not dream of understanding what their nature is. They are obsessed with the dreams of others, what they see on the screen. तो समस्या यह है कि लोग अपना स्वभाव को भूल गए, अपना स्वभाव क्या वो समझना नहीं चाहते, लेकिन वो चित्र में दिखाई पड़ता है, स्क्रीन में दिखाई पड़ता है, चलचित्र में दिखाई पड़ता है, टीवी दिखाई पड़ता है, उसको वो केवल अनुकरण करना चाहते हैं। But this is just advertising. ये केवल एक विज्ञापन मात्र है। The images we see on the screen is not the reality of what those people are going through. लेकिन आप जब स्क्रीन में देखते हो, चलचित्र में देखते हो इनको, वो वास्तविकता में सत्य नहीं है, वो उनका स्वभाव नहीं है। What is it that everyone in this world is looking for? अगर पूछा जाए आपसे, एक प्रश्न है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति किस चीज को ढूंढ रहा है, किस चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? I'm asking the question. Peace, very good. Ananda Shanti. So bliss and Shanti, very good. Love, Prem. Prem? Yes, this is all very good. People are looking for Shanti. They are looking for peace. They are looking for Ananda.
They are looking for enjoyment. They are looking for prem and love. Can this happen? Can love occur if I buy a very expensive Mercedes? ये सही बात है कि मैं शांति प्राप्त करना चाहता हूँ, प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या ये जो चीज है मैं जो प्राप्त करना चाहता हूँ एक बहुत महंगी मर्सिडीज गाड़ी खरीदने से होगा क्या? Are people here familiar with the Andaman Islands? तो आप जब जानते होंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, द्वीप है। There are islands there where no man is living. तो उधर बहुत सारे ऐसे जगह आइलैंड्स है, द्वीप है जहाँ कोई मनुष्य निवास नहीं करता। Imagine if I had the most expensive car in the world, but I was alone on the Andaman Islands in my car. आप एक बार कल्पना करके देखिए, आपके पास विश्व की सबसे महंगी गाड़ी है, लेकिन उस द्वीप में हो जहाँ कोई निवास नहीं करता उस गाड़ी के साथ में। If I had a Mercedes or if I had a Maruti, would it make any difference? क्या आप उस द्वीप में एक मर्सिडीज है या मारुति है, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है उससे? Why? Why would it make no difference? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा आपको? Because nobody is there to see that. क्योंकि कोई है नहीं उधर, देखने वाला है नहीं। So is the car important or is the reaction from other people important? तो क्या कार महत्वपूर्ण है या लोगों का आपके प्रति जो प्रतिक्रिया है वो महत्वपूर्ण है? So we are not actually interested in the material things of this world. वास्तविकता देखा गया हमारा कोई भौतिक जगत के वस्तु में कोई रुचि नहीं है। We are interested in them because of the impact they will have on other people. क्योंकि हम इन वस्तुओं में इसलिए हम अपना रुचि दिखाते हैं ताकि हम लोगों के प्रतिक्रिया जो है उसके प्रति हमारा रुचि है। Happiness does not come from matter. तो ये जो जड़ वस्तु है उससे हमको सुख और आनंद प्राप्त नहीं होता। Happiness comes when there is interaction between living beings. तो सुख और आनंद प्राप्त होता है जब हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार संबंध बना के रख सकते हैं। And the deepest love is when devotees come together and serve each other. तो ये सबसे महान सुख और प्रेम तभी है जब भक्त एक दूसरे के संग में आते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। But we have forgotten this art of how to create loving relationship within the body of society. तो हम इस बात को भूल गए कि हम ये जो समाज का जो शरीर है उनके बीच में अलग अलग वर्गों के बीच में प्रेम पूर्वक संबंध कैसे बना के रखें, इसको हम भूल गए। How many hands do we have? आपके पास कितने हाथ है? 2. How many people are there in the whole of Bharatvarsh? कितने लोग हैं पूरा भारतवर्ष में? We say 1.3 billion. I don't know what is that in crores. Is a lot. How much can I take with 2 hands? आप 2 हाथों में कितना ले सकते हो बताइए? This much. At the moment, we are all trying to take for ourselves with 2 hands. तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों हाथों से अपने लिए बटोरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। But if everyone in India decided not to take for themselves and decided to instead give to everyone around them, how many hands would we be receiving from? देखिए अगर पूरा भारत में जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने सोचा कि मैं दोनों हाथों से मैं अपने लिए नहीं रोकूंगा, दूंगा करके अगर कोई सोच रहे कि आपको कितने हाथ मिलेंगे? Well, 2.6 billion. 2.6 billion hands. 260 करोड़ हाथ मिलेंगे आपको। And this is the difference between Varnashram and between modern selfish society. यही है वर्णाश्रम जो समाज है और आजकल का जो आधुनिक जो लोग से प्रेरित समाज है। Modern society wants to take with 2 hands so they can get a Mercedes and impress people. तो ये जो आधुनिक समाज क्या चाहता है कि मैं दोनों हाथ से अपना बटोर लूं और एक मर्सिडीज खरीदूं और लोगों को मैं प्रभावित करूं। But Varnashram encourages everybody to give, the whole of society to give to each other, not to impress,
but to express love from the heart. ये वर्णाश्रम जो समाज है, वर्णाश्रम जो सोसाइटी है, वो जो प्रेरित करता है हर व्यक्ति को देने की प्रेरित करता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि हमारा प्रेम को व्यक्त करने के लिए. If you impress people, maybe they will remember for maximum 5 minutes. अगर आपने किसी को प्रभावित किया या आपने किसी आकर्षित किया तो आपको केवल 5 या 6 मिनट के लिए लोग जो है आपको स्मरण करेंगे. I have a big car in London, and when I drive past, people often turn their heads to see, wow, this is a nice car. पास लंदन में बढ़िया कार है, तो मैं जब उसको चलाता हूँ तो लोग जो है देखते हैं क्या कितना बढ़िया कार है उनके पास. But do you know, impression on people was not when I was driving that car. आपको ये सूचना देना चाहता हूँ, मैंने जब लोगों को प्रभावित किया है वो कार के द्वारा प्रभावित नहीं किया मैं. I was once walking across a bridge in London over the Thames River. जो थेम्स रिवर जो नदी है उसके ऊपर एक ब्रिज था, उसके ऊपर मैं चलते हुए जा रहा था. And it was a very beautiful sunny day, and I just finished my exams for university, and I had a long holiday ahead of me. तो अभी मेरा परीक्षाएं खत्म हो गई थी और यूनिवर्सिटी में परीक्षा खत्म हो गई थी. मेरे सामने बहुत सारी छुट्टियां थी. And I was feeling very happy, मुझे बहुत relaxed. आनंद आ रहा था, बहुत सुकून रहा था. And then I saw in the corner of my eye a man, a homeless man sitting there on the bridge. जब मैं जा रहा था मैंने कोने में देखा एक व्यक्ति का जिसके पास कोई घर नहीं था, वैसा वो बैठा हुआ था. And his face was bent down and he seemed in deep pain. तो उनका मुंह लटका के बैठा हुआ था और लग रहा था कि उनको देख के उनके हृदय में बहुत दुख है. So I asked him, how can I help you? What do you need? तो मैं उनके पास जाके एक प्रश्न पूछा कि मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ. I said, here is some money. Here's some 20 pounds, 10 pounds. तो लो आप ये जो 20 पाउंड है आप ले लो करके पैसा. He said, actually, I don't need money. I need some shoes. तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, मुझे जूते की आवश्यकता है. He said, even if you give me money, it is so hot. If I walk along the street, my feet will burn. तो उन्होंने कहा कि अगर आप पैसा देंगे तो भी मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं चल के जाऊंगा, इतना गर्मी है तो मेरा जो पैर है वो जलने लगेंगे. So because I was feeling so happy that day and spontaneous, I took off my shoes and I gave it to them. तो मैं बहुत प्रसन्न था, खुश था. मैंने सोचा कि मैं अपना जूता निकाल के दे, तो मैंने जूता निकाल के उसको दे दिया. I walked back to my halls, my place, student residence, and then I forgot about that event for 2 years. तो मैं वापस अपने चला गया, अपने जहाँ हॉस्टल था और स्टूडेंट था, चला गया. तो मैं उसको पूरा भूल गया उस बात को. Then on the day I was leaving college 2 years later, somebody came from behind me and gave me a hug. तो मैं स्टूडेंट कॉलेज में था, भी हॉस्टल पूरा होने के बाद मैं छुट्टियों में जा रहा था. तो उस समय मैं जा रहा था, पीछे से किसी ने आके मुझे आलिंगन किया. And I turned around, I didn't recognize the person. So I said, okay, Hare Krishna, how can I help? तो मैं उनको पहचान नहीं पाया, पीछे मुड़ के देखा, पूछा कि मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ. He said, you don't remember me, but 2 years ago, you gave me a pair of shoes. तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, लेकिन 2 साल पहले तुमने मुझे जूता दिया था. He said, because of those shoes, I could then go to government accommodation to spend the night. तो वो 2 जूता दे दिया है, उस वजह से मैं जो सरकारी व्यवस्था है अनाथों के लिए उधर मैं जाके निवास कर पाया. Because I had a place to stay, I could then secure a part-time job. तो मुझे रहने का जगह मिला, उसकी वजह से मुझे पार्ट टाइम जॉब मिला. Because I could get a part-time job, I could then see my daughter who I had not seen for 2 years. मैंने पार्ट टाइम नौकरी किया, उसकी वजह से मैं अपनी बेटी को देख पाया, जो 2 साल तक मैं उनको देख भी नहीं पाया, मिल भी नहीं पाया मेरी बेटी से. Because I could see my daughter, I no longer felt the need to drink every night until I passed out because of my pain. Because I could see my daughter, I no longer felt heartbroken, and I didn't need to drink alcohol
alcohol every night. तो मैं अपनी पुत्री से मिल पाया, इस वजह से मुझे उतना सुख मिला, तो मुझे पीने की यानी शराब पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी. And he said, because of that, I secured a permanent job, and now I'm cleaning your university. तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह से मैं दारू पीना बंद कर दिया था, उसकी वजह से मुझे एक परमानेंट नौकरी मिला, तो ये जो यूनिवर्सिटी है आपका, मैं उसको साफ सफाई कर रहा हूँ. Now, often I drive across that bridge in my big car. तो मैं वो ब्रिज के ऊपर से मैं अपने कार में बहुत बार घूमता रहता हूँ. And for 5 minutes, people are very impressed with the car that I'm 5 मिनट के लिए driving. वो गाड़ी देख के सभी लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं. But every time I see that spot of where I did something selfless for somebody else, that has a bigger impact in my life, and that has a bigger impact in his life. ये जो मैंने 2 साल पहले वो जो व्यक्ति को बिना कोई इच्छा के मैंने उनको सेवा किया, स्वार्थ के बिना जो सेवा किया, वो जो कार्य है वो मेरे जीवन में सबसे प्रभावशाली घटना रहा और उनके जीवन में भी सबसे बड़ा प्रभावशाली घटना रहा. So the point of Varnashram Dharma is to leave this mentality where we are taking for ourselves, which only gives short-term satisfaction. तो ये जो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर ये जो केवल बटोरने की, संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, उसको त्याग करना. जो ये संग्रह करने की प्रवृत्ति केवल क्षणिक कुछ ही समय का सुख देता है. And understand your nature and how you can make a meaningful contribution to the lives of others. तो ये वर्णाश्रम धर्म के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारे स्वभाव के अनुसार समाज को किस प्रकार हम उपयोगी हो सकते हैं, क्या हम उसको समाज को योगदान दे सकते हैं. ये वर्णाश्रम धर्म का मूलभूत सिद्धांत है. युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्तिकीम अयुक्त कामकारेण फले शक्त निबध्यते. The devoted soul attains complete peace. जो भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक जो जीता है, वो जो आत्मा है, वो पूर्ण आनंद सुख शांति को प्राप्त कर सकता है. Because he is doing all of his work and offering the result to the Supreme Lord. क्योंकि वो अपनी पूरा क्षमता के अनुसार, स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है और भगवान को उस कार्य का फल को समर्पित कर रहा है. He serves the Lord by serving the deity, but he also serves the Lord by serving the Lord's children. तो अब भगवान का श्री विग्रह का तो सेवा कर रहा है और साथ साथ में भगवान के जो बच्चे हैं, पुत्र हैं, अंश हैं, उन सब का भी सेवा कर रहा है. He is not greedy for himself. वो लोभी नहीं है अपने लिए. So we must learn this science of spiritual life, but also the science of understanding our nature and contributing to society, if this society is to function well. अगर आप चाहते हो कि समाज अच्छी तरीके से चले, तो सबसे पहला हम अपना स्वभाव को जानना चाहिए और उस स्वभाव के अनुसार कार्य करके समाज के लिए कुछ करूं, इस प्रकार की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए. भारत भूमिते होइला मनुष्य जन्मर्यारा जन्म शर्त का करी kara para upakara. This means that one who has taken birth in Bharat, India, he should make his life successful and work for the ultimate benefit of all society. खास करके जो भारत देश में जन्म लिया है, उन सब का परम कर्तव्य है कि अपना जीवन को सार्थक करे और अन्य लोगों का उपकार कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करे. And Srila Prabhupada understood that this para upakara, this highest benefit for all, is varnashram dharma. तो श्री प्रभुपाद जी ये उपकार के विषय में विचार करते हुए हमारे हमको बताए कि ये जो वर्णाश्रम जो है, धर्म की स्थापना जो है, ये समाज के लिए सबसे परोपकारी कार्य. Whether a Shudra, whether a Brahmana, whether a Vaishya, whether a Kshatriya, be all you can be and offer it to Krishna. हाँ, ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, शूद्र बनो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोई भी वर्ण में रहो और अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करो. Sri Prabhupada said, just learn how to serve the Lord by doing your duty. You will gain full spiritual knowledge
and full satisfaction. प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप अपने प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते भगवान को समर्पित करो तो आप पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करोगे और साथ साथ में आप परम संतुष्टि को प्राप्त करोगे. So we can understand that Varnashram is given by the Lord. Varnashram is the way which we can attain pure peace for ourselves, and Varnashram is the way that society can also become peaceful and satisfied. तो हम ये बात को जानते हैं कि भगवान वर्णाश्रम स्वयं भगवान बनाया और वर्णाश्रम धर्म के द्वारा स्वयं शांति को प्राप्त कर सकते हैं और वर्णाश्रम धर्म के द्वारा सारा समाज जो है उनको भी हम सुख प्रदान कर सकते हैं. ईशवशमिदं सर्वं यत्किंचा जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः मग्रिथा कस्य स्विद्धनम्. This means that everything in this whole universe is controlled and owned by the Lord. One should accept only what is necessary for himself and offer the rest to the Lord and in the Lord's service. तो ये मंत्र का अनुवाद इस प्रकार है कि भगवान कहते हैं ये उपनिषद में कहा गया है कि हर चीज भगवान का है, इसलिए हमको जो जरूरत है उसे स्वीकार करेंगे और अन्य जो चीज है उसको भगवान को समर्पित करेंगे. Imagine if there is a truck and it is full of big bags of grain and seeds. तो आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि बहुत बड़ा ट्रक है, उसके अंदर बहुत सारे अनाज है. And then imagine one bag of seeds falls onto the road and breaks open. तो ऐसा एक बड़ा गोनी जो है नीचे गिर पड़ा और पूरा वो बिखर गया, पूरा उसके अंदर दाने हैं. If a bird comes to that bag, what will the bird do? अगर कोई पक्षी आएगा तो क्या करेगा पक्षी, बताइए. He'll eat some and then he'll leave. थोड़ा सा उठाएगा, जितना पेट भरे निकल जाएगा. Imagine a fox comes. अगर कोई सियार आएगा तो क्या करेगा? He'll take some and then he'll leave. थोड़ा सा लेगा और निकल जाएगा. And if some squirrel comes, अगर कोई गिलहरी आएगा तो he'll take some and then he'll leave. थोड़ा लेगा निकल जाएगा. But if a man comes, he'll take the whole bag and then he'll leave. अगर मनुष्य आएगा तो जानते हो क्या करोगे. So this is not the right mentality. The Lord is saying, take your quota and the rest you give to society. तो यही भगवान कहते हैं कि आपका जो कोटा है उसको आप लो और बाकी जो है आप समाज को दो, ये कहा गया है. This बेटे आ जाएगा. कौन है? अरे बोल, उन माताओं को बोलो गप नहीं मारे, सामने बैठ के बैठे. So this is the basis of establishing a good society. तो ये जो है सही समाज को स्थापना करने के लिए एक बहुत सुंदर व्यवस्था है. I am very encouraged to see that you are planning to build a beautiful temple here. तो मैं बहुत उत्साही हो गया हूँ कि आप सब लोग जो हैं बहुत सुंदर मंदिर निर्माण का कार्य में रत हैं. And this, just like in a wheel we have the axle, the temple should be the center around which the whole society functions. जैसे एक बड़ा पहिया होता है, पहिए के बीच में भाग होता है, वो मंदिर होता है. मंदिर को केंद्र में रख के सारा समाज व्यवस्थित होना चाहिए. But we should not be satisfied with just having the center point of the wheel. तो हमको ये केवल वो जो पहिया है उसके बीच वाला जो भाग है उसको ही बना के हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए. A wheel has many spokes for it to become complete. तो एक पहिया का बहुत सारे स्पोक्स होते हैं उसको पूर्ण करने के लिए. We should have our own supply of water. तो हमारे पास अपना ही पानी का व्यवस्था होना चाहिए. We should have our own supply of food. अपने पास हमारे ही भोजन का व्यवस्था होना चाहिए. When we go to the market and buy food, do we know what chemicals are on these क्या आप मार्केट में जाके जब कोई अनाज खरीदते हो तो आप क्या मालूम है आपको इस मार्केट में क्या इसमें क्या क्या केमिकल्स हैं? Are they interested in the health of your children or are they interested
in their profit. जब आप दुकान से कोई माल खरीदते हो, अनाज खरीदते हो, क्या वो दुकानदार जो है कि आपके बच्चे के जो स्वास्थ्य के विषय में वो सोचता है क्या, या उसकी प्रॉफिट के लिए सोच रहा है? Are they interested in giving the best offering for Bhagwan, or are they interested in their profit? तो क्या वो भगवान का भोग के लिए विचार कर रहा है या खुद अपना फायदा के लिए सोच रहा है? Would anyone here give a poisonous fruit to Bhagwan? क्या आप में से ऐसा कोई चाहता है कि भगवान को मैं जहर से भरा हुआ एक फल खिलाऊं? Would anyone here invite devotees to their home and give them poisonous fruit? क्या आप में से ऐसा कोई चाहता है कि मैं भक्तों को अपने घर में निमंत्रण दूं और जहर से भरा हुआ चीजों को खिलाऊं? Therefore, we must start to become in control of the quality of our fruit and vegetable that we offer to the Lord and we offer to the devotees. तो हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए ताकि नियंत्रण में हो हर चीज जो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भक्तों को समर्पण कर रहे हैं. We must be in control of our homes. तो हमारे घर के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए. घर में हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं. In London, people make big money. लंदन में बहुत पैसा बनाते हैं. But their homes, even after working for 25 or 30 years, they still have not paid off their mortgage because the homes are even more expensive. 25-30 साल मेहनत करने के बाद भी वो अपने घर का खर्चा चुका नहीं सके. So after working every minute of every hour of every week until they are 70 years old, what do they have to show for it? हाँ, देखिए कि पूरा हर दिन हर साल घंटा इतना हर मिनट काम करके 70 साल का उम्र के बाद भी आप देखिए उनके पास घर का खर्चा चुका नहीं तो अंत में बचा क्या उनके हाथ में. And now in India, people are leaving the farms, they are leaving the villages, and they are going to Mumbai, they are going to Delhi, they are going to Bangalore. तो भारत में भी गांव छोड़ के अपने अपने खेती छोड़ के बैंगलोर, मुंबई ऐसे शहरों में जा रहे हैं. They have to pay no mortgage in the village. There is no mortgage to be paid. Maybe they've owned this land for many generations. तो उधर कोई कर्जा तो है नहीं गांव में क्योंकि उनके पास जो जमीन है अनेकों पीढ़ियों से उसके पास वो जमीन आया है. And instead they want to live in an apartment that even after 25 years or 30 years they will not own. तो ऐसे अपार्टमेंट में ऐसे फ्लैट में रहना चाहते हैं कि जो 20-25 साल के बाद भी उनका नहीं होगा वो. Is this progress? क्या ये प्रगति है? So we should be in control of our water, we should be in control of our food, we should be in control of our homes, our shelter. तो हम जो पानी को ग्रहण कर रहे हैं, पानी जल पी रहे हैं, उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए. हम आहार ग्रहण कर रहे हैं, उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए. हम जिस घर में रहते हैं उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए. We should be in control of our community spirit, sambandh. हमारा जो समाज है, भक्तों का समाज है, उनके बीच में संबंध है, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए. In cities like all these cities in India and in the West, you don't even know who is living next door to you for 20 years, 25 years. तो आप 20 साल एक ही बिल्डिंग में रहे लेकिन आपके बाजू में कौन है वो मालूम नहीं पड़ता शहर में. People have died and their families don't know, their friends don't know because nobody has any community spirit. For months they are left there. तो किसी का मृत्यु हो गया है, उनको परिवार वालों को मालूम नहीं, उनके मित्रों को मालूम नहीं है कि अनेकों महीने बीत जाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता उसका मृत्यु हो गया क्योंकि लोगों के बीच में संबंध जो है वो खत्म हो गया है. We must be in control of our education. हमारा जो शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए. The education system is just training you to go and work to make somebody else money. तो हमारा जो आजकल जो शिक्षा की प्रणाली है वो इस प्रकार प्रशिक्षण दे रहा है बच्चों को ताकि वो बड़े होने के बाद किसी और के लिए पैसा कमाएगा. And then we must be in control of our own commerce. We should work collectively with each other so we keep the profits of our hard work and we can offer it to the deities and we can offer it to our community. जैसे हम कोई व्यापार करते हैं, हमारा समाज का एक व्यापार होना चाहिए जिसके द्वारा उसका जो मुनाफा हो वो भगवान को जाए, भक्तों के लिए जाए. So the temple is the center of the wheel. तो ये जो पूरा पहिया है उसका जो बीच वाला भाग है क्या बोलते हैं?
Axel. एक्सेल, हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी। हाँ, उस ये जो है ये मंदिर है और पूरा समाज जो है वो पहिया है। And water, food, shelter, community spirit, education, and commerce are the 6 spokes. ये जो 6 बातें हैं, अभी तो कहा गया है, पहला है जल, आहार, शिक्षा और Community spirit, education, शिक्षा, commerce, कॉमर्स यानी व्यापार और घर और ये हमारे पहिए के जो स्पोक्स बोलते हैं, स्पोक्स वो है। This won't happen overnight. ये जो बताया जा रहा है कि एक रात में, एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। But I would encourage anyone who is young to invest in this. तो मैं चाहता हूँ कि आप में से जो युवा हैं या जो भी हैं, ये जो प्रणाली है हमने जो कहा उसमें अपना समय दो, जीवन दो। And I would encourage all of the older generation to encourage and support the younger generation in investing in this. तो मैं जितने भी बड़े हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है अपने जो बच्चों को, अपने युवाओं को, युवतियों को ये जो प्रणाली में उनको सहयोग प्रोत्साहन करें। And this will yield benefits not only in your lifetime, ये जो प्रणाली है वर्णाश्रम की प्रणाली, उसमें केवल इस जीवन में ही आपको रिजल्ट दिखेंगे, but it will yield results for many, many, many generations to come. तो केवल इसी पीढ़ी में नहीं, अनेक आने वाले भविष्य में लोगों की जो पीढ़ी है उनको भी आप एक सहयोग दे रहे हो, उनको हित के लिए कार्य कर रहे हैं। In one seed, take an apple. In one apple, there are many seeds. आप एक एप्पल लीजिएगा, उसपे बहुत सारे बीज होंगे। But if you plant just one seed, what happens? अगर आप एक बीज बोओगे तो क्या होगा बताइए? A tree will grow. बड़ा वृक्ष होगा। And on that tree, how many fruits will come? उस वृक्ष में कितने सारे फल होंगे? How many? 1,000, 10,000, 100. And in each one of those fruits, how many seeds are there? तो उसमें हर एक फल में कितने बीज होंगे? And in those seeds, how many more trees are there? तो एक बीज में कितना और वृक्ष होंगे? And in those trees, how many more fruits are there? उसमें कितने, उस बीज में कितने सारे फल होंगे? So all we need to do is for a place like Vapi to plant this one seed. तो ये जो वापी नामक क्षेत्र में एक बीज आप आरोपण करो। If you plant this seed successfully, you may create a forest of fruit trees all across India, which benefits people not just today, but for so many generations. तो ये वर्णाश्रम का बीज अगर आप वापी में अर्पण करोगे, पूरा भारत में, पूरा विश्व में ये अनेकों फलों के रूप में, बीजों के रूप में प्रकट होगा। It may not seem like much. This is just one seed, but there is so much potential there. तो आप ये मत सोचो कि एक बीज में क्या होने वाला है, लेकिन इस बीज में कितना सारा वो शक्ति है, हम जान नहीं सकते। And know for sure that this is assisting Srila Prabhupada in Srila Prabhupada's unfinished business. तो ये जो कार्य है, ये श्रील प्रभुपाद जी को सहयोग दे रहा है और श्रील प्रभुपाद जी का जो अपूर्ण इच्छा है उसको पूर्ण करने वाला है ये बीज। And know for sure that Srila Prabhupada's desire is non-different from the desire of Swayam Bhagwan. तो ये बात सत्य है, ये सत्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही इच्छा है। So I thank you all for being so sincere in your efforts, for so sincerely cooperating and following Kamalochan Prabhu. And if I can assist in any way in your planting of that seed, please consider me your servant. तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप बड़े श्रद्धा के साथ सुने और ये जो कार्य में कार्यरत हैं आदेश के अनुसार। तो इस वर्णाश्रम का स्थापना में अगर आप मुझे कोई आदेश देना चाहते हैं तो मैं पूरा तैयार हूँ इस आदेश को पालन करने के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछिए और पूछना चाहिए। Any questions? Hare Krishna.
Hare Krishna. Wonderful lecture on Varnashram. Toji, I have one question. According to Shastra's quotation, Janmana Jayate Shudra, all are Shudra by birth. So, in Kali Yuga, how is it possible to establish Varnashram? And I would like to mention one more thing, that Swadharma, about to Swadharma, what Bhagavan said in 18th chapter, Swadharmi Nidanam Saya, Paradharma Bhayava. Now, how we can match both these things? And how can we can establish it Kali Yuga? This is my question. Thank you. Very good question, Rosie. इनका प्रश्न ये है कि हम अभी वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन कलयुग में शास्त्र में कहा गया है, कलयुग में जन्म न जाए तो शूद्रा, जन्मते सब शूद्र हैं। और बात ऐसा है कि इस अध्याय में बात कहा गया है कि अपना स्वधर्म को पालन करना चाहिए और परधर्म से अच्छा, तो इसको कैसे हम स्थापित कर सकें? So this is a very good technical question. Now I was reading Srila Prabhupada's response to this. तो मैं ये बड़ा और एक तकनीकी प्रश्न है, दार्शनिक प्रश्न है, तो मैं श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ये इस प्रश्न का उत्तर में पढ़ रहा था। And Srila Prabhupada's response is that this Janmana Jayate Shudra is because Garbhodhan Sanskar and all of the further sanskars are not performed. तो ये जो जन्म जायते शूद्र, ये बात इसलिए कहा गया जन्मता सभी शूद्र है क्योंकि गर्भाधान संस्कार और अन्य संस्कार नहीं किए जा रहे हैं, ये कारण है। But that's not to say that with proper education and with proper purificatory process that the nature of someone cannot be revealed. तो इस प्रकार ये बात है, इसका अर्थ ये नहीं कि एक प्रशिक्षण और संस्कार के द्वारा एक व्यक्ति का जो स्वभाव प्रकट पता नहीं लगेगा, ये बात आप नहीं कह सकते, पता लगेगा। In the Manu Sumita it is given that in 10,000 men, one will always be a Brahmana. तो मनुस्मृति में इस बात को कहा गया है कि 10,000 लोगों के बीच में एक ब्राह्मण होगा। 9 will be Kshatriyas. 9 क्षत्रिय होंगे। 90 will be Vaishyas. 90 वैश्य होंगे। 9,900 will be Shudras. 9,900 जो है शूद्र होंगे। And this applies across the whole world. ये पूरा विश्व में इसका ये बात जो है ये सब चीज लागू होता है। Which is why Srila Prabhupada was able to go to a place where the Garbhodhan Sanskar had never been performed and turn them into sannyasis. तो इसी की वजह से प्रभुपाद जी ऐसे स्थान में गए जहाँ गर्भाधान संस्कार कभी हुआ ही नहीं है, ऐसे लोगों को उन्होंने सन्यासी बनाया। You see, education comes from the root educare. तो एजुकेशन ये जो शब्द है, एजुकारे नामक एक ग्रीक वर्ड से आता है। Just like Vidya and Veda comes from the root word vid. जैसे विद्या और वेद जो है वो विद धातु से प्रकट होता है। And the process of education is to reveal that which within. तो ये जो एजुकेशन जो शब्द है, शिक्षा जो है, वो इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदरूनी स्वभाव को प्रकट कराना। So even within this age of Kali, if the proper education system is undertaken, even though we may apparently all be of one varna, our true nature will be revealed. तो अगर बराबर प्रशिक्षण दिया जाए, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो प्रशिक्षण में, शिक्षण में, तो भले ही कि कलयुग में एक ही वर्ण दिखाई पड़ता है, फिर भी हमारा स्वभाव जो है ये संस्कार के द्वारा और प्रशिक्षण शिक्षण के द्वारा प्रकट हो सकता है। Of course, this इसके बारे में हम बाद में आपके साथ पर्सनली बैठ के चर्चा कर सकते हैं। there was a second part to the question. Sorry, I forgot. What was the Same thing. How to recognize one's varna? how to recognize one's varna? So, again, recognizing one's varna also comes down to the bona fide spiritual master or teacher. तो हमारा कौन सा वर्ण है वो गुरु के जो आदेश के अनुसार ही हम मान सकते, जान सकते हैं। But yes, a greater discussion can be had at another time. This is a very lengthy conversation. ये जो चर्चा है बहुत लंबा चौड़ा चर्चा है, ये कभी और इस विषय में चर्चा किया जा सकता है।
But the beginning starts with a society that recognizes that there are 4 varnas. नहीं, कम से कम शुरू तो करना चाहिए कि हमको पहचाने कि हर जगह ये 4 वर्ण है. Is that okay? Thank you, Buddha. Hare Krishna. और कोई प्रश्न है? वर्णाश्रम धर्म इतनी अच्छी थी तो फिर इसके अपहरण होने का कारण क्या है? So when Varnashram Dharma was India was so wonderful and perfect, why it got destroyed? You see, at no point in the material world there is always some difficulty. तो ऐसा कोई समय नहीं रहा इस भौतिक संसार में जहाँ कोई कष्ट ही ना हो. Even when there was Ram Rajya, was there not still difficulties in Lord Ram's family? तो राम राज्य के समय में भी क्या राम के परिवार में कष्ट नहीं थे? Was he not separated from his own sons? तो क्या अपने ही पुत्र से विलग्न होना पड़ा ना भगवान को? Dukalayam Ashashvatam is a nature of this world. काले वशाश्वतम ये जो भौतिक जगत का स्वभाव है. So while one cannot identify the precise cause for difficulties happening within this world, तो हम ये जो भौतिक जगत की इस प्रकार के कष्ट क्यों हो रहे हैं उसका एकदम बिल्कुल मूल कारण जो है हम पहचान नहीं सकते. just like I could give an example, but what we should focus on is how we resolve that problem. तो हम अपना ध्यान किसके ऊपर केंद्रित करना चाहिए कि हम ये जो समस्या है उसका समाधान कैसे निकालें. It was actually said by Srila Prabhupada that Bhaktivinoda Thakur could have made the whole world Krishna conscious. तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा भक्तिविनोद ठाकुर जो है पूरा विश्व को कृष्ण भावना भावित बना सकते थे. But he left the work unfinished so that future generations could purify themselves by taking on this mission. ताकि वो उस कार्य को अधूरा छोड़ दिए ताकि भविष्य में आने जो लोग हैं भक्त हैं वो कार्य करके जिम्मेदारी लेते हुए कार्य करते हुए पवित्र हो सके. In the same way, we could also extrapolate that Srila Prabhupada, who did so many miraculous things, left Varnashram unfinished. तो उसी प्रकार हम इस बात का हम निर्णय ले सकते हैं या ऐसा Yeah, kind of. I don't want to say speculate. We could theorize. समझ सकते हैं उसी बात को लेके कि निष्कर्ष को ले सकते हैं. इस निष्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसे कार्य को छोड़ दिया हमारे ऊपर ताकि हम ये कार्य करें वर्णाश्रम को स्थापना करें कार्य ताकि उसके द्वारा हम पवित्र हो. शायद प्रभुपाद जी कर सकते थे लेकिन उन्होंने हमको छोड़ा. And ultimately, Varnashram is never destroyed, it just temporarily appears covered. तो ये वर्णाश्रम जो है वो कभी भी नाश नहीं होता लेकिन तात्कालिक समय के लिए कुछ समय के लिए वो आवृत हुआ रहता. But uncovering it is a great benediction on all of us and will be our offering to Srila Prabhupada and ultimately the Supreme Lord. तो ये जो आवरण को निकालना ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेवा का जवाबदारी है और ये बहुत बड़ा समर्पण होगा श्री प्रभुपाद जी को और भगवान श्री कृष्ण के लिए. But I'm very pleased to hear that Mataji appreciates that under Varnashram system, society was much better off, in a much better condition. मैं इस बात को इस प्रश्न को सुनकर बहुत खुश हूँ कि माता जी ने कहा कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था के वजह से जो पहले था उस वजह से समाज और अच्छा था. इस बात को जानती है और समझती है. इस बात को सुन के मैं बहुत प्रसन्न हूँ. Because many people in this day and age feel that Varnashram is an oppressive system which exploits society. तो प्राय लोग सोचते हैं कि वर्णाश्रम जो है वो ऐसा एक शोषण करने वाली व्यवस्था है ताकि हम लोगों को शोषण कर सकें. But we should have no doubt that when Varnashram is applied properly, with proper understanding, it will be the most uplifting and empowering social format. तो जब वर्णाश्रम की स्थापना करेंगे जब उसका व्यवस्था अच्छी तरह से होगा
तो ये बात को समझ के रखिएगा, ये जो वर्णाश्रम है ये समाज के लिए सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। Hare Krishna. हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, सबको अच्छा लगा सुन के?